दिला एक Students, is my voice is audible? Yes, sir. Okay. We will wait for 1 more minute and then we'll start, okay? Okay, so dear students, I think we should start, okay? Yeah, so in the last lecture, we have studied the difference between IPv4 and IPv6, okay? After that, we have studied the concept of, that means how many classes are there? Total 5 classes are there, okay? How these classes are divided? A, B, C, D, E, right? And after that, out of 5 classes, 3 classes are used for normal user purpose. That means user can use those classes, and rest of the 2 classes are used for multicasting and broadcasting purpose. After that, we have studied the IPv4 and IPv6. IPv6 is far better. Security is quite good in IPv6 if we compare with IPv4. In order to resolve the issue of IP addresses, that means number of IP addresses available are very less. That's why IPv6 launched in the market, and that IPv6 are assigned automatically, because it's difficult to remember 128 bit of IP address. Okay, that's why it is assigned automatically. आपको assign करने की जरूरत नहीं, वो automatic assign कर लेगा. After that, or we have started with the concept of subnetting, or before that, what we can say, the concept we have started is about, just a minute, student. Hello. Okay, so the concept that we have started is about what? The subnetting part. So why subnetting is needed? What is the need of that?
Okay, that part we need to study. Hello, that part we need to study. So in this case, what happen exactly, student? Whatever network is there, if it is very large in size, okay, then there is a need to make it smaller. Means you need to divide that particular network into small sub networks. What benefit you are getting by dividing the huge network into small sub network? अगर आप लोग एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे तो उससे फायदा क्या होगा? आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है या फिर जो कंजेशन होने वाला है चैनल के अंदर, जो ट्रैफिक इंक्रीज होती है एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, दैट पर्टिकुलर ट्रैफिक इज गेटिंग रिड्यूस्ड. This is what the benefit of subnetting. Okay, let's say I am having only one class. If TE computer is the whole class is there and around 73 students are there. आपके क्लास में 73 students हैं, and if I will ask the question to everyone and everyone is ready to answer, okay, and almost all are speaking at the same time, what happens, student? Collision will happen because the class is on the whole class is available there of 73 students. If I am dividing the first to 10 student for subnet 1, then 11 to 20 student for subnet 2, 21 to 30 for subnet 3, like that. That means how many total subnets are possible? 7 subnets. Okay, and if I am calling any particular subnet, let's say from roll number 31 to 40, please answer. So can I say instead of 70, I am focusing only on 10 students? That means the traffic will goes on reducing. That is called as the concept of subnetting. Subnetting की वजह से क्या होगा? आपका जो भी कुछ बड़ा नेटवर्क है वो स्मॉल नेटवर्क में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. The problem associated with classful. Classful यानी क्या? जहाँ पे क्लासेस होते हैं, क्लास A, B, C, D, E. और क्लासलेस यानी क्या? जहाँ पे कोई क्लासेस डिफाइन नहीं होते, आपके आईपी एड्रेस आप लोग आपके रेंज के हिसाब से असाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्लासलेस. तो क्लासफुल में रेंजेस फिक्स है, फ्रॉम 0 to 127, फ्रॉम 128 to 1. So those ranges are fixed, but in case of classless, the ranges are not fixed. Okay, then this is coupled with ever increasing demand for the address for organizations that we want to connect to the इंटरनेट. ओके, इंटरनेट में तो सबनेटिंग का पर्पस कैसे सॉल्व होगा या फिर वहां पे सबनेटिंग के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे अपन वो डिस्कस करेंगे. सो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग. व्हाट इज सबनेटिंग? सबनेटिंग इज डिवाइडिंग द लार्ज नेटवर्क into small subnetworks is called as subnetting. What is supernetting? Whatever small network you have created, you need to add all those networks into one of the network that is called as supernet. यानी अगर आप लोगों ने एक नेटवर्क को 10 नेटवर्क में डिवाइड किया है तो उसको बोला जाता है सबनेट, और 10 नेटवर्क को मिला के अगर एक नेटवर्क बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज सुपरनेटिंग. होप द डिफरेंस इज क्लियर. इन सबनेटिंग वी आर डिवाइडिंग and in supernetting we are combining. Okay, so this is what the difference between subnetting and supernetting. Okay, so what is the subnet, what is the supernet? So we will see here. If you observe here, what is given here? 141.14.192.2. okay, so if we observe here, this is of class B, and in class B, can anyone tell me what is the default subnet mask? Anyone? Students, what is the default subnet mask in class B? Yesterday only we have studied. What is the default subnet mask of class A, class B, class C? Anyone? क्या सबनेट मास्क होता है क्लास A का? 255.0.0.0. Very good, Saili. Okay, so the answer is 255.0.0.0 for class B. Anyone? What is the default subnet mask for class B? 255.255.0. Right, 255.255.0.0. So all of you just have a look here. अगर आप लोग विदाउट सबनेटिंग कंसिडर करोगे, सो नेट आईडी इज व्हाट? 255.255. दिस इज द नेट आईडी, क्योंकि 16 बिट का होता है. एंड व्हाट इज द होस्ट आईडी? होस्ट आईडी भी 16 बिट का होता है, 2:16, राइट? सो इन दैट केस अगर विदाउट सबनेटिंग कंसिडर करोगे तो ये 16 बिट आपके किसको जाएंगे? आपके नेटवर्क पोर्शन को, और ये आगे के 16 बिट किसको जाएंगे? आपके होस्ट पोर्शन को. बट इन सेकंड सिनारियो, जस्ट उसके नीचे के डायग्राम में देखिए, इन बी डायग्राम, इफ वी हैव कंसीडर्ड दैट पर्टिकुलर 192, उसको देखो ब्लू कलर किया है,
सॉरी येलो कलर किया है. सो दैट 192 येलो कलर इज द सबनेट आईडी. यानी क्या, आपका ये जो भी कुछ नेटवर्क था, आपका ये जो भी कुछ नेटवर्क था, इस नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, द फर्स्ट 16 बिट्स आर देयर फॉर नेट आईडी, राइट. और जो नेक्स्ट आगे के 8 बिट है, those bits you have treated as for what, host id, right. So when you are considering that particular subnet id, तो आप लोगों ने क्या किया, जो host id के जो बिट्स थे 16 बिट, उसमें से 8 बिट अभी आपने फिर से नेट के लिए दे दिए. उसको देखो सबनेट दिया है यहाँ पे, उसका नाम क्या दिया है, सबनेट. यानी 8 बिट भी आपने किसमें खींच लिए, नेटवर्क के अंदर खींच लिए, और सिर्फ 8 बिट बचे अभी होस्ट आईडी में. यानी जब आप लोग इस वे से आपके यानी 16 बिट तो यहाँ पे फिक्स थे, लेकिन 16 बिट के ऊपर भी अगर आपको जाना है 17 बिट, 18 बिट, अप टू 24 बिट, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबनेट पोर्शन बना सकते हैं. और वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि जो एक नेटवर्क था अभी क्या किया गया है, वो डिवाइड किया गया है अलग अलग पीसेस के अंदर. वो कैसे काम करता है किस वजह से मैं आपको बताऊंगा. सी हियर 141.14.74.24 ये है क्लास बी का. इसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0. जब आप मास्किंग ऑपरेशन करोगे तो आपको नेटवर्क एड्रेस देखो क्या मिलेगा विदाउट सबनेट में, 141.14.0.0 बराबर. और जब विथ सबनेट मास्क करोगे तो यहाँ पे देखिए अभी आपका सबनेट मास्क क्या है, यहाँ पे 192 ऐड हो गया है. यहाँ पे डिफॉल्ट में यहाँ पे 0 था, लेकिन ये 0 अभी नीचे सबनेट के अंदर 192 हो चुका है स्टूडेंट्स. अभी जब ये 192 होगा तो आप इसके साथ जब मास्किंग करोगे तो आपका सबनेट में देखिए नया नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, 141.14.64.0. So can I say in subnetting the network address is changed. In subnetting network address is changed. क्योंकि देखिए जब आपने फर्स्ट सबनेट बनाया 1 से लेके 10 तक का, तो स्टार्टिंग एड्रेस इज 1, एंडिंग ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज 10. तो इस वजह से फिर आपने नेक्स्ट सबनेट बनाया 11 to 20. So 11 and 20. So these two addresses are reserved for starting address and broadcast address. 21 to 30. So these addresses are reserved for what, starting address and broadcast address. 21 is for starting and 30 is for broadcast. तो इस वजह से आप लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग फाइंड करते हैं. So can anyone tell me what is subnetting, students? What is subnetting? Subnetting is the feature in which the large network is divided into small sub networks. That is called as subnetting. What is supernetting? Whatever small networks you have created in subnet, all those subnets are added to create the single supernet. That is called as what? Supernet. That means छोटे छोटे नेटवर्क को ज्वाइन करना, उसको क्या बोलाता है, सुपरनेट बोला जाता है. ओके, सो सी हियर आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो. सबनेट मास्क कैसे दिखता है सिर्फ देख लो. अगर डिफॉल्ट होगा तो देखो 255.255.0.0, ये तो आपको पता है क्लास बी का डिफॉल्ट है. लेकिन जब सबनेटिंग के अंदर आपका ये आगे के जो 200 है उसमें से अगर कुछ भी चेंज हुआ, इफ देर इज अ चेंज, दैट मीन्स सबनेट के अंदर ये 16 बिट के साथ ये 3 बिट आपके ऐड हो चुके हैं. दैट मीन्स आप लोगों ने वहां पे क्या किया है, सबनेट क्रिएट किए हैं. आप बोल सकते हो कि आपका बड़ा नेटवर्क छोटे छोटे सबनेट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. तो जो 16 बिट ऊपर 00 थे उसमें से अभी 13 ही बचे और 3 बिट सबनेट आईडी के लिए दिए गए. तो नेटवर्क आईडी 16 बिट का और आगे के 3 बिट सबनेट आईडी के, तो टोटल 19 बिट बन गए आपके. सो अकॉर्डिंगली वहां पे समझ. तो आपको सिंपल एक चीज समझ में लो, डिफॉल्ट छोड़ के कुछ भी वैल्यू अगर सबनेट मास्क में जाती है तो वहां पे सबनेटिंग है. डिफॉल्ट यहाँ पे था 255.255.0.0, लेकिन जब सबनेटिंग हुआ तो वो हो चुका है 255.255.224.0. तो यहाँ पे सबनेटिंग हो चुका है. ओके, देन दीज आर सम ऑफ द लिंक्स विच आर अवेलेबल. आप इस पे ऊपर क्लिक करो, आपको और ज्यादा एग्जांपल इसके ऊपर मिलेंगे कि सबनेटिंग एग्जैक्टली होता कैसे. आप इस पे जस्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें से और क्या होगी, अंडरस्टैंड होगी. एक अच्छा पीपीटी भी एनपीटीएल का, वो भी यहाँ पे दिया है. आप इसको सिर्फ नेट पे सर्च करो, आपको ये पीपीटी भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी. अभी अपन एग्जांपल पे जाएंगे, एक्चुअल एग्जांपल्स में. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सब नेटवर्क एड्रेस इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इज 200.45.34.56 and subnet mask is 255.255.240.0. Now tell me, this is from which class? 200 is from which class? Class C. Class C, right. Tell me, this subnet mask, what is the subnet mask for class C? What is the default subnet mask for class C, students? 255.255.240.0.
255.0, लेकिन ये जो थर्ड ऑक्टेट है ये 255 है क्या? इज इट 255? No, sir. No. That means, can I say the subnet is available here? Can I say subnet is available here? Yes. Now, how to find out the subnetwork address? Okay. So for that, also we need to understand the procedure. Okay. तो देखिए, by applying the ANDing operation, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है 200.45.35.56 को, और आपके सबनेट मास्क को भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 255, 255, 240, 240 यानी 4 times 1, 4 times 0। इसको जब आप लोग एंडिंग ये करोगे तो आपको नया एक वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, एंड दिस न्यू वैल्यू इज नथिंग बट द सब नेटवर्क एड्रेस। दिस न्यू वैल्यू इज नथिंग बट द सब नेटवर्क एड्रेस। ओके, तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 16, 32, राइट। तो आपका नया जो है वो क्या बनेगा? 200.45.32.0। तो ये आपका नया सब नेटवर्क एड्रेस बना। ओके, अभी ये कैसे बनता है, क्या इसको अभी और डिटेल में देखेंगे, और यही एग्जांपल्स now there is a focus on our main questions. These questions are always asked in the GATE examination. So please try and understand. जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, आपको हरदम ये लाइफ टाइम काम आएगा। दिस इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, अभी ये डिसाइड करना है अपने को कि नेटवर्क 70 बच्चे तो कितने कितने बैचेस में डिवाइड होने चाहिए। जब आप लोग बैचेस में प्रैक्टिकल आवर्स में आते हैं तो चार बैचेस में डिवाइड करते हैं, बराबर। अगर आपको बोला 10-10 की लाइन बना के खड़े रहो तो आप लोग 7 लाइन में डिवाइड होंगे, 8 लाइन में, सॉरी। ओके, 1 to 10, 11 to ऐसे पकड़ा जाए तो 70 तक, और 71 से लेके 73 तक, यानी टोटल 8 लाइन। ओके, तो उस 8 लाइन में भी काम कैसे होगा, किस वे से होगा, सबनेटिंग काम कैसे करता है, नेटवर्क किस वे से डिवाइड किया जाता है, ये आप लोग अच्छे से समझ लो। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, दूसरा एग्जांपल आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू रीड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अ सर्विस प्रोवाइडर, अभी सर्विस प्रोवाइडर यानी क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हैज गिवन यू द क्लास सी नेटवर्क रेंज। आपको सर्विस प्रोवाइडर ने यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको क्लास सी का नेटवर्क रेंज का एक आईपी एड्रेस दिया है। व्हाट इज द आईपी एड्रेस? 209.50.1.0. Can anyone tell me this is belong to which class? Already written in the question. This is belong to which class? C. Class C. C. Very good. Now read the next line. Your company must break the network into 20 separate subnets. उन्होंने क्या बोला है, आपको एक आईपी एड्रेस दिया है और उस पर्टिकुलर केस में आपको उस आईपी एड्रेस को क्या करना है, 20 सब नेटवर्क्स में आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। यू नीड टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर नेटवर्क इनटू 20 सबनेट्स। ओके, तो आपको क्या करना है, 20 सबनेट्स में क्या करना है, इस चीज को आपको डिवाइड करना है। अभी इसको 20 सबनेट्स कैसे बनाएंगे? ओके, नाउ टेल मी, आपको अगर 20 सब नेटवर्क बनाने हैं तो आप लोगों को नेटवर्क पोर्शन के कितने बिट लेने पड़ेंगे? What is the default subnet mask for class C? 255, 255, 255.0, राइट। अभी उस केस में मुझे कितने नेटवर्क चाहिए? 20 यानी आपको नेटवर्क आईडी यानी 20, 2 raised to how much is equal to 20? Can anyone? आपको कितने बिट कंज्यूम करने पड़ेंगे? अगर 16 नेटवर्क बनाने रहते तो आप लोग 2 raised to कितना करते तो 16 सब नेटवर्क बनते? एनीवन? 2 raised to how much? 2 raised to question mark is equal to 16. Can anyone? 4. 4. वेरी गुड। अभी मुझे कितने सबनेट चाहिए स्टूडेंट, बोलिए। टोटल मुझे कितने सबनेट चाहिए एग्जांपल में? 20। तो 20 चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2 raised to how much is equal to 20? 2 raised to 4, 4.5 तो नहीं लिख सकते ना अपन, तो 2 raised to 5 लेना पड़ेगा। यस और नो? Yes or no? 2 raised to 5 is equal to how much? 2 raised to 5 is equal to how much, students? 32. 32। और मुझे कितने नेटवर्क चाहिए? 20. तो ऊपर के 12 छोड़ दो ना, लेकिन मैं 2 raised to 5 तो ले सकता हूं ना। यानी मेरे नेटवर्क पोर्शन में मुझे कितने नंबर ऑफ वंस लेने पड़ेंगे? 5 नंबर ऑफ वंस। नाउ हैव अ लुक हियर। अभी आपको सॉल्यूशन के ऊपर में लेके चलता हूं तो आपको समझ में आएगा।
डिटरमाइन द नंबर ऑफ सबनेट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। आपको सबनेट्स बनाने हैं, कितने सबनेट बनाने हैं? 20 अगर आपको सबनेट बनाने हैं, दैट मींस आपको कितने बिट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? 20 का बाइनरी करोगे तो देखिए क्या मिला, 000 10 100। नाउ रिजर्व द रिक्वायर्ड बिट्स इन सबनेट मास्क एंड फाइंड द वैल्यू। व्हाट इज द रिजर्व रिक्वायर्ड बिट इन सबनेट मास्क? अभी आपने को मिनिमम कितने बिट्स रिजर्व करने पड़ेंगे सबनेट मास्क के? 5 बिट। हाउ मेनी बिट्स वी नीड टू रिजर्व? 5, 2⁵5। तो 2⁵5 जब करोगे तो 32 बनेगा, क्योंकि 2⁴ लोगे तो 16 ही सबनेट बनेंगे ना। तो उसके आगे वाले फिगर के लिए जाते हैं 2⁵5, तो मेरा जो नेटवर्क बनेगा उसमें मुझे 2⁵5 लेना पड़ेगा। सो सी हियर द बाइनरी वैल्यू ऑफ 20 सबनेट टेल्स दैट वी नीड एटलीस्ट 5 नेटवर्क बिट्स। वी नीड एटलीस्ट 5 नेटवर्क बिट्स। मुझे एटलीस्ट 5 नेटवर्क बिट्स लगाएंगे, यानी 2⁵5 इज इक्वल टू 32, यानी 32 सबनेट बनेंगे। उसमें से कंपनी को तो सिर्फ 20 ही चाहिए, ऊपर के 12 छोड़ दीजिए। ओके, गो टू द नेक्स्ट। Okay, now what is our original subnet mask? 255, 255, 255.0. Okay, so this is the original one. But अभी तो subnetting करना है students. Okay, now we must convert the 5 bits of client bits to the network bit. Okay, देखिए आपको ये जो client के जो 5 बिट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपने को सबनेटिंग क्रिएट करना है। तो सबनेट के अंदर क्या होता है, जो आपके होस्ट पोर्शन के बिट्स होते हैं उसको भी आपको क्या करना पड़ता है, नेटवर्क पोर्शन में कंसिडर करना पड़ता है। Okay, so how many bits are there total? 8 zeros are there. इस 8 0 में से मुझे 5 बिट क्या चाहिए, नेटवर्क पोर्शन में चाहिए, तो मैं 5 बिट को रिप्लेस कर दूंगा। ओके, सो व्हाट इज माय न्यू सबनेट मास्क? 255.255.255. Can anyone tell me this particular value? What is this value, students? 240 what? 240? Anyone? 240 होता है या 248 होता है या 250 होता है? कितना होता है? Can anyone? 248, right? So 248 होता है ये बाइनरी वैल्यू। Whatever new mask is written, अभी 5 बिट जो है वो मैंने वहां पे 20 सबनेट बनाने हैं, इसलिए मुझे 2⁵5 करना पड़ा, और जो 5 बिट है वो होस्ट पोर्शन के नेटवर्क पोर्शन को देने पड़े। दैट्स व्हाई मेरे क्लाइंट के जो 5 बिट थे, जो 00 थे होस्ट पोर्शन के, उसको मैंने नेटवर्क पोर्शन में असाइन कर दिया, तो 5 नंबर ऑफ 1 बन गए और 3 नंबर ऑफ जीरोस बन गए। उसके बाद इफ वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर mask bit back to the decimal, then the new value will become 255, 255, 255.48. Okay, so in that way your new subnet mask is there. आपका नया सबनेट मास्क यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। Then what to do next? अभी आगे देखिए क्या करना है अपने को। तो उस केस के अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो मुझे बताइए यहाँ पे अभी कितने नंबर ऑफ जीरोस बचे? How many number of zeros are there, students? So 3. 3. So 2⁵3 is equal to how much? 8. 8. So can I say 20 जो नेटवर्क बनेंगे उसके हर नेटवर्क के अंदर 8-8 बिट 8-8 होस्ट रहेंगे। फर्स्ट नेटवर्क सबनेट 8 होस्ट, सेकंड सबनेट 8 होस्ट, थर्ड सबनेट 8 होस्ट, ऐसे। क्योंकि वहां पे देखिए आप लोग बाय डिफॉल्ट अगर ये 255 255 255 रहता है, 0 रहता है, टोटल 8 नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर 2⁵8 यानी 256 होस्ट कनेक्ट कर सकता हूं मैं एक नेटवर्क में। लेकिन अभी क्या हो चुका है आपका, यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ जीरोस थे वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं नंबर ऑफ वंस में, क्योंकि मुझे 20 सबनेट चाहिए थे तो 2⁵5 करना पड़ा था, और बचे कितने? 3 बिट, 3 0। सो 2⁵3 इज इक्वल टू 8। तो देखिए अभी आपका नया जो एड्रेसेस बनेगा वो किस वे से बनेगा। ओके, सो इफ वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, और या फिर एक दूसरा लॉजिक है, देखो यहाँ पे एक्चुअली ये जो एग्जांपल दिया इसमें एक दूसरा लॉजिक है। अगर इस दूसरे लॉजिक के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मेरे पास टोटल जो पैरेंथेसिस वाला बिट है, जो पैरेंथेसिस वाला है, देखो 1 2 3 और उसके बाद में एक चौथे नंबर का बिट, ये तो 8 रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आप ऐसे लॉजिक लगाए तो भी चलेगा पैरेंथेसिस के अंदर का, या फिर आप जो नंबर ऑफ जीरोस है उसको 2⁵2 करोगे, नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो 2⁵3 इज इक्वल टू 8, ऐसे भी चलेगा। यानी दोनों लॉजिक काम करते हैं यहाँ पे।
तो 2/3 किया तो भी 8 होगा, और आपका नंबर ऑफ 1 यानी आगे पैरेंथेसिस डाल के जो 1 कंसिडर करोगे तो भी क्या होगा, आपका 80 होगा। तो आप लोग सिंपल यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, नंबर ऑफ जीरोस को रेस टू कर दो। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, 3। तो नंबर ऑफ जीरो अगर 3 होंगे तो 2/3 हो जाएगा आपका। तो टोटल 8 नंबर ऑफ बिट्स वहां पे आएंगे। तो देखिए अभी आपको लास्ट सोल्यूशन अपन यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ऑलरेडी बोला कि 8 बिट होने चाहिए ना एक नेटवर्क के अंदर। तो देखिए अभी फिर से एग्जांपल में आता हूं मैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे एक नेटवर्क के अंदर 8 बिट हो रहे हैं। अभी मेरा स्टार्टिंग एड्रेस देखो क्या है, 209.50.1.02। पहला जो सबनेट बनेगा, 20 सेपरेट सबनेट बनाने ना, तो इसके अंदर यहां से आगे कहां तक जाएगा स्टूडेंट, वो 209.50.1 कहां तक जाएगा, एनीवन? सर 8। 0 to 7, राइट? 0 to 7 यानी 8 बिट। आगे का नेटवर्क बोलो, ये पहला नेटवर्क हुआ आपका। दूसरा नेटवर्क क्या बनेगा? सर 8 to 15। 8 to 15। तीसरा नेटवर्क क्या बनेगा? 15 to 16 to 23। ऐसे आपके कितने कितने नेटवर्क बनेंगे स्टूडेंट्स? सी हियर, आपको यहाँ पे समझ में आएगा जो पूरा कैलकुलेशन होने के बाद। देखो 1.0 to 1.7 ये पहला नेटवर्क, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर 8 बिट है। एक नेटवर्क क्योंकि नंबर ऑफ होस्ट नंबर ऑफ जीरो से रिप्रेजेंट होता है ना, सो 2/3 2/2 क्योंकि नंबर ऑफ जीरो 3 ही थे, सो 2/3 इज इक्वल टू 8। तो पहला नेटवर्क बना, दूसरा नेटवर्क बना। इस वे से आप लोग कैलकुलेट करते जाओ, और ये आप कहां तक निकालोगे स्टूडेंट? ये आप लोग कहां तक निकालोगे? जब तक आपके टोटल 20 नेटवर्क्स खत्म नहीं हो जाते तब तक। सो आर यू गेटिंग हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, आई विल गिव यू द अनदर एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका जो सॉल्यूशन है आप मुझे बताओगे। ओके मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप लोग उसका आंसर किस वजह से प्रेडिक्ट होगा मुझे बताइए, ठीक है? सी आई एम राइटिंग हियर, अ कंपनी इज ग्रांटेड एड्रेस and company need to create, कंपनी को कितने सबनेट बनाने हैं यहाँ पे? 6 सबनेट्स। ओके देन फाइंड सब network address. Now what is the question students? What is the question here? What is the question here students? The question is 201.70.64.0. how many subnets we need? कंपनी को कितने कितने कितने? सर 6 subnets. So can anyone tell me मुझे कितने नंबर ऑफ बिट्स 2 raised to how much is equal to 6? सर 3 बिट्स। 3 राइट? सो टेल मी अभी आपका नया सबनेट मास्क क्या बनेगा? कैन एनीवन? व्हाट इज योर न्यू सबनेट मास्क? यहाँ पे व्हाट इज योर न्यू सबनेट मास्क? कैन एनीवन? अपन ने पहले के एग्जांपल में क्या किया था स्टूडेंट? यहाँ पे 20 चाहिए थे ना अपने को, 20 सबनेट चाहिए थे, राइट? यहाँ पे अपने को 20 सबनेट चाहिए थे। अभी के एग्जांपल में अपने को कितने चाहिए? 6 चाहिए ना? तो 111। कैन एनीवन टेल मी द आंसर देन? ये एग्जांपल यहाँ पे चाहिए था, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ यहाँ पे मैं अगर कंसिडर करता हूं तो मुझे बताइए क्या क्या बनेगा आपका एड्रेस? 1111111 हो गए क्या? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया 255 255 255 पॉइंट। अभी मुझे बताइए मुझे कितने बिट नंबर ऑफ 1 करने पड़ेंगे तब जाके मुझे 6 सबनेट बनेंगे? बोलो 2/3 देखा था ना अपन ने,
So shall I write here 1 1 1? How many times 0, students? 5 times, yes or no? Yes. Okay, so can anyone tell me this figure? What is this figure? 255.255 point. बोलो ये क्या बनता है? इसका आंसर बताओ मुझे, चलो। So 224. क्या बना? 224. sir. श्योर 224 बना? Yes, sir. ओके, सो राइट डाउन 224 हियर। ओके, बन गया। चलो अभी आगे आगे चलते, यानी ये मेरा सब नेटवर्क, ये मेरा नया सब नेटवर्क मास्क हो गया है, मेरा सबनेट मास्क हो गया नया। अभी अभी उन्होंने क्या बोला है, राइट? अभी अपने को क्या करना है, आप लोगों ने ये तो कन्वर्ट कर लिया, राइट? आपको 5 के जगह पे अभी 3 ही चाहिए थे, तो आपने यहाँ पे भी क्या कर लिया, ये यहाँ पे और 2 0 ऐड कर लिए, ये 3 कर लिया, और इसके बाद आपका जो नया बना वो क्या बना, 224 भी बन गया स्टूडेंट। ओके, अभी अपन आगे चलते हैं। अभी आगे चलने के बाद इंक्रीमेंटल वैल्यू के हिसाब से मुझे बताइए, इस केस के अंदर अपने क्या थे, यहाँ पे 3 ही ये थे और 2 ये थे। सो नाउ हाउ मेनी, यहाँ पे कितनी वैल्यू, ये 5। सो टेल मी हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल, हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल? 32. 32. So here the value will become 32. ओके, देखो इसको पैरेंथेसिस का लॉजिक आपको लगाना है तो ये लॉजिक भी आप यहाँ पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है नहीं सर आपने जो बताया नंबर ऑफ जीरोस को रेस टू कर देने का, तो वो भी चलेगा। या फिर आपको लगता है कि सर ये पैरेंथेसिस वाला जो मेथड है, सेकंड मेथड, इसका भी चलेगा। तो देखो 1 2 4 8 16 एंड 32 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, 2⁵5 निकाला तो भी चलेगा। तो टोटल हाउ मेनी, 2⁵32। यानी आपका नेटवर्क जो बनेगा स्टूडेंट, वो कैसे बनेगा, यहाँ पे वो नेटवर्क कैसे बनेगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा वो, 0 से लेके 31. वेरी गुड, 31। आगे So 32 से 63. आगे 64 से लेके 64 से लेके करो कैलकुलेट, So 95. बराबर। देन 96 से लेके 127, देन 128 टू 128 से लेके 159 एंड 160 से लेके 191। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। Are you getting student this question? Are you getting or not? Everyone, Yes. everyone got it? Yes or no? Yes, sir. पक्का समझ में आया? हाँ या नहीं? Yes, sir. Yeah. ओके, गुड। प्लीज आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो, अदरवाइज है ना, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं आया एग्जाम में, आपको इसी वे से एग्जांपल देंगे। कंपनी है, कंपनी को डिवाइड करना है, 4-4 3-3 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते, स्टूडेंट आपको आंसर देते आने चाहिए। नाउ द अनदर क्वेश्चन विच इज ट्विस्टेड, ये उसी का अलग पार्ट है। अभी तक अपने को क्या बोला था, सबनेट निकालने को बोला था, राइट? अपने को सबनेट की वैल्यू दी थी, मुझे 20 सबनेट चाहिए, मुझे 5 सबनेट चाहिए, मुझे 6 सबनेट चाहिए। अभी इस एग्जांपल में आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है, इस एग्जांपल में क्या दिया है? अभी Sir, allotted addresses. आपको यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट्स दिए। हर नेटवर्क में कितने कितने क्लाइंट होने चाहिए, 50-50, राइट? इसके पहले के केस में क्या था, नंबर ऑफ सबनेट्स दिए थे ऑलरेडी। यानी देखो यहाँ पे उल्टा किया है स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। इस प्रीवियस एग्जांपल में क्या था आपको दिया हुआ, सी हियर आपको 20 सेपरेट सबनेट्स, सबनेट का वैल्यू दिया था। इस एग्जांपल में इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, अगर आप इस एग्जांपल को फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको सबनेट निकालने हैं, आपको यहाँ पे सबनेट क्या करना है, निकालने हैं। और यहाँ पे क्या दिया है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे सबनेट निकालने हैं, आपको क्लाइंट दिए हुए, राइट? तो अपने को क्या करनी पड़ेगी,
रिवर्स प्रोसीजर करनी पड़ेगी। अपने को यहाँ पे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? रिवर्स। ओके, वी नीड टू परफॉर्म रिवर्स हियर। अपने को रिवर्स करना है। अभी रिवर्स कैसे करेंगे? सी हियर, हाउ मेनी क्लाइंट्स वी नीड? 50। तो मुझे बताइए 2 हाउ मच इज इक्वल टू 50? So 6. 6 से क्यों लिया? 5 क्यों नहीं लिया? So क्योंकि 32 होता है 5 में। बराबर, तो 18 क्लाइंट का शॉर्ट हो जाएगा ना। 18 जो क्लाइंट है वो हर नेटवर्क में शॉर्ट होते जाएंगे अगर आप लोग 5 लेंगे तो। फिर अभी अगर 6 लिया तो क्या होगा? 14 एक्सेस बनेंगे। ठीक है ना, एक्सेस चलता है लेकिन कम होने चाहिए क्या? नो लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे उल्टा दिया है, तो आपको नंबर ऑफ जो क्लाइंट दिए तो आपको नंबर ऑफ जीरोस ऐड करने हैं। जब नंबर ऑफ सब नेटवर्क बोला जाता है तो नंबर ऑफ वंस ऐड करते हो। जब क्लाइंट दिए जाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस ऐड करते हो स्टूडेंट। तो आपको 6। अभी मुझे बताइए फिर से कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है? So C. सी। अभी सी में बताइए नंबर ऑफ होस्ट पोर्शन कितने बिट का होता है? 8 बिट का, 24 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है। अभी उसको Yes. आपको क्लाइंट चाहिए ना, तो जो 8 बिट बचे हुए जो 0080 थे, अभी उसमें से कितने नंबर ऑफ जीरोस करने के यहाँ पे आप लोगों ने? 6 नंबर ऑफ जीरोस, और बचे हुए 2 नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या रहेंगे? 1 रहेंगे। बचे हुए 2 जो रहेंगे वो नंबर ऑफ 1 रहेंगे। ओके, तो बचे हुए 2 नंबर ऑफ 1 यानी 2:2। दैट मींस हाउ मेनी सबनेट्स आर पॉसिबल हियर स्टूडेंट? 4 सबनेट्स। तो यहाँ पे देखिए अभी, ओके, ये तो आपका डिफॉल्ट था। अभी अपने को 6 बिट लगेंगे क्योंकि 2:6 करना है तो 64 होना चाहिए, मिनिमम 50 क्लाइंट होने चाहिए। तो ये जो आपके 8 बिट है 00, अभी उसमें से 6 बिट क्या कर दो? नंबर ऑफ 1 कर दो। सॉरी, 6 बिट 0 रखो और नंबर ऑफ ये जो आगे के 2 बिट है नंबर ऑफ 1 कर दो। तो देखिए बन गया आपका। ये 6 बिट आपने 0 रखे और आगे के 2 बिट आपने क्या कर दिए? नंबर ऑफ 1s कर दिए। तो इसमें से आपको ध्यान में आएगा कि अभी जो बचे हुए 2 बिट से उसका फिर से 2 आप लोग अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे, ओके, अभी ये कन्वर्ट किया, ये ठीक है, ये सब कर लिया आप लोगों ने। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक नेटवर्क के अंदर मिनिमम, इफ वी कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर बाइनरी वैल्यू इनटू डेसिमल, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे मिनिमम 64 वैल्यू आती है। ओके, यानी आगे के एक्सिस 14 क्लाइंट रहे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जो नेटवर्क बनेगा वो 0 to 63 बनेगा, 64 to 127 बनेगा, 128 to 191 एंड 191 to 255। तो देखिए इस वे से आपके बचे हुए नंबर ऑफ वंस कितने थे यहाँ पे स्टूडेंट? नंबर ऑफ 1 कितने थे? 2। तो 2:2 इज इक्वल टू 4। तो देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबनेट्स आर पॉसिबल? 4 सबनेट्स आर पॉसिबल। सो क्या ना ऐसे टोटल 4 number of subnets are there. Are you getting this? Exact opposite example is this. Are you getting with this? Yes sir. पहले सबनेट दिया था, आप लोग नंबर ऑफ होस्ट निकालते थे। अभी नंबर ऑफ होस्ट दिए, आपको नंबर ऑफ सबनेट्स फाइंड। ओके, सो क्लियर? इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल अगेन गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल। आप सॉल्व करोगे एक सबनेट के ऊपर और एक नंबर ऑफ होस्ट के ऊपर, और आप लोग मुझे आंसर देंगे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।